جی بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہے آپ کے ساتھ میں سر حافظ شہباز، اور بیٹا جی آپ کے لیے لے کر آیا آج کا دا بگ انٹیک میں۔ بیٹا جی آج میرے پاس جو ٹاپک ہے بیٹا جی 10th کلاس ہے، اور 10th کلاس کی بیٹا جی میرے پاس ہے اردو۔ بیٹا جی اردو میرے پاس ٹاپک ہے اور کلاس ہے گریڈ ہے 10۔ تو بیٹا جی یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا چلوں، آج کے اس لیکچر میں اردو کی جو پیرنگ آف اسکیم ہے انشاءاللہ وہ میں ڈیپلی آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ذکر کروں گا، ریکارڈ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹا جی آپ کا پورا سلیبس ہے 10th کی اردو کا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ جی بیٹا جی لیٹس سی، توجہ سے بات کو سنیے گا۔ ہاں سچ یاد آیا بیٹا جی، میرے لیے اس چینل کو سبسکرائب تو کر دو، سبسکرائب کریں گے تو سمجھ آئے گی نا، تو امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور بیٹا جی اچھے سے کمنٹس بھی کر دیں اور فالو بھی کیجیے۔ لیٹس سی پلیز۔ جی بیٹا جی سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں بیٹا جی، ہمارے پاس اردو کی یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس یہاں اس کے 3 حصے ہیں، اس کے ہمارے پاس 3 حصے ہیں بیٹا جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نیسا معروضی، نیسا معروضی میں بیٹا جی ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے۔ ایم سی کیوز میں کتنی ہے جی؟ بورڈ پیٹرن کے مطابق 15 ایم سی کیوز ہے، ایک چیز یہ۔ اور نمبر 2 بیٹا جی دوسری چیز ہمارے پاس ہے حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں حصہ اول، حصہ انشائیہ میں حصہ اول میں بیٹا جی پہلی چیز تو میرے پاس ہے وہ ہے 12 اسباق ہے۔ وہ کیا جی؟ 12 اسباق ہے بیٹا جی۔ 12 اسباق کون سے؟ بیٹا جی توجہ سے بات کو سنیے گا۔ پہلا مرزا محمد سعید، دوسرا نگریہ پاکستان، اور تیسرا پرستان کی شہزادی۔ نمبر 4 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ نمبر 5 اردو ادب میں عید الفطر، اور نمبر 6 ملمہ، نمبر 7 چغل خور، اور نمبر 8 نام دیگ مالی، اور نمبر 9 علی بخش، اور نمبر 10 ہے استنبول، اور نمبر 11 خطوط غالب، اور نمبر 12 ہے خطوط رشید احمد صدیقی۔ تو بیٹا جی آپ کے 12 اسباق ہیں، اور امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور بیٹا جی اس کے ساتھ میرے پاس ہے حصہ انشائیہ میں پارٹ 2، اسی حصہ اول میں دوسری چیز میرے پاس حصہ انشائیہ، اور اسی میں بیٹا جی دوسرا حصہ میرے پاس ہے، دوسرا حصہ بیٹا جی اس میں میرے پاس 8 نظمیں۔ کتنی ہے؟ 8 نظمیں بیٹا جی، بڑی آسان ہے۔ کون کون سی ہے؟ حمد ہے، نعت ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، فاطمہ بنت عبداللہ، اور 5ویں کسان، اور 6ٹھی جینے جینے پاکستان، اور 7ویں ہے اونٹ کی شادی، شادی کری انشاءاللہ برات اکٹھی لے کے چلیں گے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آخری بیٹا جی مال گودام اور پشاور کا بھی جو حال ہے انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، پریشان نہیں ہونا۔ تو بیٹا جی یہ مال گودام روڈ یہ آپ کی 8 نظمیں، اور اس کے علاوہ بیٹا جی غزلیں ہیں، غزلیں 4 ہیں۔ 4 غزلیں کون سی؟ حسرت موہانی، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فراق اور کپوری، اور ادا جعفری۔ بیٹا جی یہ 4 غزلیں ہمارے سامنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، امید ہے یہاں تو بیٹا جی بات واضح ہوگی۔ اب بیٹا جی سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ حصہ انشائیہ، حصہ انشائیہ میں جو حصہ اول ہے، حصہ اول سوری بیٹا، حصہ اول میں بیٹا جی میں نے بات آپ سے ذکر کی، میرے پاس ہے 12 اسباق۔ تو بیٹا جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 12 اسباق میں بورڈ میں کون کون سا سوال آئے گا اور وہ کیسے آئے گا۔ تو بیٹا جی میں وہ بتاتا چلوں، یہاں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا 12 اسباق سے پہلا سوال آئے گا، پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ جی بیٹا جی یہ 2 پیراگراف آئیں گے، دونوں کرنے ہیں، دو میں سے دونوں کرنے ہیں۔
जी बेटा जी तो से बात सुनिएगा जी। वो क्या कहते हैं, शायर ने क्या कहा था, खैर शायर तो कहते ही रहते हैं, कुछ हमसे भी सुन ले। वो क्या मुझे बात याद आई, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो बेटा जी मैं ये बताना चाह रहा था, मैं ये कहने आया था, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहने लगा हूं, आप भी मेरी बात गौर से सुन लें। बेटा जी बात यह है कि पैराग्राफ की जो तशरीह है, 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 में से दोनों बेटा जी इनके नंबर है 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10। बेटा जी 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, ये 12 असबाब से बेटा जी पहला सवाल होगा। और यहीं से बेटा जी दूसरा सवाल हमारे पास है असबाब से, वो आएगा खुलासा। बेटा जी इसके 10 नंबर होते हैं, 2 में से 1 करने होते हैं, 2 में से 1 करने चाहिए, 2 में से 1 करने, और 5 नंबर के ये खुलासा है बेटा जी। और इन्हीं असबाब से तीसरी चीज बेटा जी वो है मुख्तसर सवालात। वो क्या जी, मुख्तसर सवालात। और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यहां से बेटा जी बात बनेगी, वो है 8 में से, 8 में से कितने करने हैं जी, 5 करने हैं। 5 का मतलब है 5 × 2 = 10। अब बेटा जी पैराग्राफ की तशरीह 10 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये आ गए, और 5 नंबर हम ये खुलासे के बेटा इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बेटा जी कुल कितने बन गए, 25 नंबर। कुल कितने बन गए, 25 नंबर। बेटा जी बड़े कीमती है, एक एक नंबर से पोजीशन अप डाउन हो जाती है। और बेटा जी हाँ मैं ये बताता चलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा बाय वाचिंग वीडियो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप जब मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं, जब आप मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखेंगे, तो मेरे अल्लाह ने चाहा फिर मैं भी आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोर्ड के टॉपर आप होंगे, बोर्ड के टॉपर आप होंगे इंशाल्लाह। बड़ी तवज्जो से बात को समझिएगा जी। 12 असबाग है, 12 असबाग के बाद हिस्सा अव्वल बेटा जी यहां मेरे पास है अशार की तशरीह, अशार की तशरीह। और बेटा ये जो अशार की तशरीह की बात करने जा रहा हूं, ये 2 चीजें, अशार की तशरीह में 2 चीजें। पहली चीज है नज़म से मुतल्लिका, पहली चीज है बेटा हिस्सा नज़म। बेटा जी हिस्सा नज़म में बोर्ड के अंदर बेटा जी 3 में से कितने करने हैं, सॉरी 4 में से 3 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं। और 3 का मतलब है 3 × 2 = 6, 6 नंबर। हर शेर की तशरीह 2 नंबर पर मुश्तमिल होती है। तो बेटा जी 4 में से 3 आपने ये करने हैं, और ये 6 नंबर अब आके हो गए। और दूसरी बात ये मैं बताते चलूं, हिस्सा गजल, हिस्सा गजल से 3 में से 2 अशार की तशरीह करनी है। 2 × 2 = 4, सॉरी बेटा। अब बेटा जी ये हमारे पास है 4 नंबर इधर से आए और 6 नंबर ये बेटा आपके 10 नंबर हो गए। अच्छा अगर ये चीज अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हिस्सा नज़म का जो खुलासा या मरकजी के क्या लिखना होता है, तो बेटा जी कितने नंबर का होता है बताइएगा जी, कौन बताएगा जी, 5 नंबर का या 10 नंबर का? जी जी शाबाश ऊंची ऊंची जी, कुछ कहा बेटा जी, जाके बहना शाबाश। हाँ और बेटा जी और से सुन ले, अल्लाह के बंदो ये बात याद रखिएगा, 10th क्लास की उर्दू का हिस्सा नज़म का ना खुलासा होता है ना मरकजी ख्याल होते हैं। बात समझ आ रही है? और शायर की वो शेर याद आ गया, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है, मैं किसी के दस्ते कल्ब में हूं, किसी के हक दुआ में हूं, मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है, तुझे दुश्मनों की खबर ना थी, मुझे दोस्तों का पता ना था, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाक़या कोई और है। और हाँ एक और बात बताता चलो, शायर कहता है, शायर को फिलहाल रहने तो मैं ही कह रहा हूं, कह रहे वो ना मिले तो उसे ढूंढना हर जगह, वो ना मिले तो उसे ढूंढना हर जगह, और जब मिल जाए तो सिर्फ दूर से देखना कि वो वही है या कोई और है। जी वैसी ये दरमियान वक्फा आया था, बेटे की परेशान नहीं होना। तो बेटा जी याद रखिएगा 10th क्लास की उर्दू का हिस्सा नज़म से खुलासा नहीं आता। बात समझ आ रही बेटा?
तो इसका मतलब ये हुआ कि जी अशार से सिर्फ 10 नंबर हुए। जी बेटा जी हाँ, एक चीज और है, हिस्सा नजम से बेटा जी मुख्तसर सवालात भी आते हैं, मुख्तसर सवालात भी आते हैं, लेकिन इसको हम जोड़ देते हैं इधर बेटा जी। ये हमने जब बात जिक्र की कि 12 असबाक है, उधर के मुख्तसर सवालात है, तो बेटा जी नज़म के जो मुख्तसर सवालात है वो भी उसी में शामिल है। नज़म से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा इंशाल्लाह बेटा जी अगला जो लेक्चर होगा, वेट कीजिएगा आप लोग, वो इंशाल्लाह ये जो असबाक है या मज़ामीन है या शॉर्ट क्वेश्चन है या सबक का खुलासा, इनका बोर्ड पैटर्न जो है मैं इंशाल्लाह बेटा जी एक एक चीज डीपली वो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। मेरे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए जी बेटा। बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ये 10 नंबर हुए, ये 25 के साथ प्लस में करता हूं 10, तो बेटा ये कितने हो गए हमारे पास है 35। बेटा कितने नंबर हो गए 35 जी। उसके बाद बेटा जी अगली चीज है मेरे पास, अगली चीज है मेरे पास, जैसे हमने यहां जिक्र किया था हिस्सा अव्वल, तो बेटा जी हिस्सा 2, हिस्सा 2 में यूं समझ लें 2 चीजें हम बेटा बात जिक्र करते हैं कवायद व इंशा। हम क्या बात कहते हैं, कवायद व इंशा किताब का नाम भी है ये कवायद व इंशा। बेटा जी इसकी तरतीब थोड़ी सी मैं उल्ट कर दूं, ये कवायद व इंशा, ये कवायद व इंशा, इसकी तरतीब थोड़ी सी मैं उल्ट कर दूं, इसकी तरतीब में थोड़ी सी उल्ट कर दूं, ले जाता हूं। इंशा को मैं राइट साइड पे ले आया और कवायद को लेफ्ट साइड में ले आया मैं। तो बेटा जी इंशा में मेरे पास क्या चीज है, मज़ामीन है। बेटा जी आपके पास हैंडबुक बहुत सारी है, यूनिक नोट्स भी है, शरह सरमाया भी है, आईना उर्दू भी है, टिप्स के नोट्स भी है, और भी बेटा बहुत सारी है। बरल मज़ामीन यूनिक नोट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी वो मेरे पास है 37। दूसरी चीज है मेरे पास तफहीम इबारत, तफहीम इबारत, तो बेटा जी यूनिक नोट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले 6 है वो किताबी तफहीम इबारत है, फिर 6 ये मशकी है, और फिर 3 है ये इजाफी है, कुल मिलाकर ये 15। अब बेटा जी जो मज़ामीन है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसके 15 नंबर है और तफहीम इबारत के 10 नंबर है। अब ये 15 और 10 मिला के बेटा ये बन गए 25। हमने यहाँ 35 किए थे, इसके साथ में प्लस करता हूं 25 को, इसके साथ प्लस करता हूं 25, तो बेटा जी ये बन जाते आपके 60 नंबर। ये अभी कितने बन गए बेटा जी आपके 60 नंबर ये पूरे हो गए। हाँ अब अगली बात कवायद की बात करता हूं, तो बेटा जी कवायद में 2 चीजें, पहली चीज है एराब, हम इसको तलफ़ुज़ भी कह सकते हैं, एराब है तलफ़ुज़ है, और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यहां से ये 2 भी आते हैं 3 भी आते हैं। और कवायद में दूसरी चीज है उर्दू ग्रामर, दूसरी चीज क्या है जी उर्दू ग्रामर है जी। तो बेटा जी ये भी 3 भी आते हैं या 2 भी आते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एराब में तलफ़ुज़ अगर ये 2 आते हैं तो उर्दू ग्रामर से 3 होगा, फिर भी 5 हो गए। अगर एराब में तलफ़ुज़ से 3 एमसीक्यूज आते हैं और उर्दू ग्रामर से 2 आते हैं फिर भी 5 हो गया। तो बेटा जी मैं ये बता रहा था, और ये कवायद का ताल्लुक एमसीक्यूज के साथ है, कवायद का ताल्लुक एमसीक्यूज के साथ है, ये बेटा बात को याद रखिएगा। उम्मीद है यहां तक बात से हो गई होगी। अब बेटा जी आपकी पेरिंग स्कीम है एमसीक्यूज के हवाले से, आपकी पेरिंग स्कीम एमसीक्यूज के हवाले से बेटा जी मैं यहां उसको जिक्र कर दूं तो से जी गौर से देखिएगा। बेटा जी मैंने आपको पहले बताया था 12 असबाक है, तो 12 असबाक का मतलब है कि आपको यहां से कितने एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 60 एमसीक्यूज है, और आपकी 8 नज़में, इन 8 नज़मों से आपको जो एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड पैटर्न के मुताबिक वो 2 एमसीक्यूज है। और बेटा जी आपकी 4 गज़लें, और ये 4 गज़लें यहां से 1 एमसीक्यूज आपका आएगा। कितने आएंगे 1 एमसीक्यूज आएंगे। बेटा जी आपके 10 नंबर होंगे। और जैसे ही मैंने ऊपर जिक्र किया कवायद, यहां से तलफ़ुज़ की बात करते हैं, तलफ़ुज़ या बेटा इराब, तलफ़ुज़ या इराब की बात करता हूं। यहां से अगर बिलफर्ज 2 एमसीक्यूज आते हैं तो फिर जो उर्दू ग्रामर है, उर्दू ग्रामर
बेटा जी वहां से फिर आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे, फिर वहां से 3 आएंगे, 5 ये हो गए और 10 ये ऊपर थे। तो बेटा जी इसको हम प्लस करते हैं, 5 + 10 ये 15 हो गए। अब 15 ये आपके एमसीक्यूज, 60 नंबर बेटा ये हो गए 60, और बेटा ये प्लस हमने 15 इसमें कर दिए, ये 75। बेटा जी उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेटा जी हाँ, लेक्चर को जब सुनते हैं बेटा जी तवज्जो से, गौर से, और शायर ने कहा था ना, शायर ने क्या कहना, हम भी तो काम नहीं है बेटा जी, सुनिएगा। वो कहते हैं जमाना सो रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसलिए बेटा जी जानते रहिएगा धड़कते दिलों के साथ और तवज्जो से सुनने वाले कानों के साथ। बेटा जी अगले लेक्चर का वेट कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मेरे लेक्चर को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी कीजिए और बल्कि लाइक भी कीजिए, अच्छे से कमेंट्स भी कीजिए। मुझे इंशाल्लाह इंतजार रहेगा और आप भी बेटा जी मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।